everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Dr. Padma Deshpande. Today I am going to cover a topic which is known as current exchange rate system. This comes under TYBCBI. In semester 5 you have a subject name as International Banking and Finance. So in that we are going to see what is a current exchange rate system. So current exchange rate means what? Exchange rate means the value at which the currencies are exchanged. Say for example, if you want to travel from India to USA, so at that time in USA you will require US dollars, right? So this US dollars you will have to purchase in India, and in this purchase will be done how? You will have to exchange Indian rupees in you will have to give the value of the dollars in Indian rupees and then you will have to purchase the dollars. यानी समझो मुझे अभी $1 खरीदना है तो $1 का इंडियन रुपीस में जो वैल्यूएशन होगा उस हिसाब से मुझे वो $1 खरीदने के लिए उतने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, तब जाके I will be getting $1. So this is called as exchange rate system. So we are going to see what are the different types of exchange rate system. So the first type is called as the fixed exchange rate system. So in the fixed exchange rate system, what happens is the government or the central bank intervenes in the foreign exchange market. Okay, so basically the government, if you know the central bank means the RBI. So India mein RBI is the controller of all the monetary transactions that are taking place in the country and outside the country. Now RBI has a strict control on the monetary transactions, especially the foreign exchange transactions. The RBI keeps a close watch. Now RBI has a kind of balance sheet which is called as the balance of payment. So in this balance of payment there are three types of accounts. The first one is called as the capital account, the second one is called as the current account, and the third type is called as the reserves and surplus. So whatever import export transactions takes place, they get recorded in the current account. Similarly the banking services, financial services, insurance services, whatever India and Indian residents do transactions with outsiders with regards to trade, with regards to services, all this gets recorded in the current account of the balance of payment. Similarly, whenever a person, Indian person, buys or sells any kind of assets or liabilities, he creates any kind of liabilities with, say for example, Mr. Shah Rukh Khan, he purchases a flat in Dubai. So he is an Indian resident who has done a transaction in Dubai. He has purchased a property for himself. So he has created an asset. So this will get recorded in India in the capital account of the balance of payment. Okay, so these transactions are related to import export and asset and liabilities. Now there is one more account which is called as the reserves and surplus. So in this reserves and surplus, the RBI has gold. Then the second is they have certain forex, that is foreign exchange. So forex, on the basis of forex and on the basis of gold that the country is having, the valuation of its currency takes place. And with the help of this forex, all the international transactions are done. So what does the RBI do is, it always tries to make the balance of payment equal. So what it will do is, it doesn't want the balance of payment to go in disequilibrium, because if there is a disequilibrium, the central bank will have to come in between and use its reserves and surplus to remove this disequilibrium. So what they do is, for foreign exchange transactions, they follow a system that is called as exchange rate system. So in certain countries fixed exchange rate system is followed, and in certain countries the
flexible exchange rate is followed. So what is fixed exchange rate? Now we are studying that. So under the fixed exchange rate, the government or the central bank will continuously intervene in all the foreign exchange transactions. Why they do that? Because they want to maintain the stability of the exchange rate. एक डॉलर का कीमत whatever is the Indian rupees, so that has to be maintained. So for that the government will keep on intervening. So by intervening in the foreign exchange market, what the central bank does is, the central bank or the government does is, they buy and sell foreign assets or currencies, and the central bank will always try to maintain the target price at a fixed level. So what are the features of this fixed exchange rate? The first feature is the currency in which the domestic currency is pegged should be freely convertible. It means that हम हमारे इंडियन रुपीस को जिस भी करेंसी में हम उसको ये कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला कि $1 इक्वल्स टू, से फॉर एग्जांपल $1 इक्वल्स टू 83 रुपीस. सो दिस डॉलर शुड बी फ्रीली कन्वर्टिबल. डॉलर ये एक ऐसा करेंसी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है. सो योर डोमेस्टिक करेंसी शुड बी इज पेग्ड. हम पेग्ड का मतलब क्या है? हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं डॉलर के साथ, इंडियन रुपी को कनेक्ट कर रहे हैं डॉलर के साथ. तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज पेगिंग. सो जो भी करेंसी के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं वो करेंसी आके आसानी से कन्वर्ट होना चाहिए. इट शुड बी फ्रीली कन्वर्टेबल. सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. The second condition is, the feature is that the central bank always intervenes. मतलब the central bank will always be in picture and it will try to maintain the price of the currency. Wherever required, the central bank will buy or sell currencies so that that target price जो भी है $1 equals to 83 rupees को maintain करने के लिए whatever the central bank has to do, it will take necessary steps. It is the responsibility of the central bank to maintain adequate foreign currency reserves. So ये target price को maintain करने के लिए central bank को अपने reserves and surplus में sufficient surplus या forex currencies and gold उनको रखना पड़ेगा. Now what are the advantages of this system? The first thing is कि this system contributes to the strength of the domestic currency. अब क्या होता है, when the central bank is controlling the exchange rate, so there is no fear of frequent fluctuations. आपका प्राइस एक दिन 83 है, सडनली दूसरे दिन 87 हो गया, तीसरे दिन 89 हो गया, चौथे दिन 79 हो गया, ऐसे मेजर फ्लक्चुएशंस नहीं होता है अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. सेकेंड थिंग इज कि दिस सिस्टम एंश्योर्स कि जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगा वो आके कांस्टेंट रहेगा एंड बेस्ड ऑन द करेंसी रेट हम आके इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं. सो इट कंट्रीब्यूट्स टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. देन इस सिस्टम के वजह से दिस सिस्टम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग. ये सिस्टम में बिकॉज द प्राइसेस आर मेंटेन्ड रेगुलरली बाय द गवर्नमेंट, क्या हो रहा है, सडन चेंजेस नहीं आती हैं. सो महंगाई जो होती है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है बिकॉज द सेंट्रल बैंक इज इंटरवेनिंग इन बिटवीन एंड दिस एंश्योर्स दैट द रेट्स कैन बी चेंज एज पर. जब भी जरूरत पड़ेगा तब ही आके गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा या सेंट्रल बैंक इंटरवेन करेगा एंड इट विल चेंज द डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस. In this system, the national currency is not purposely depreciated to capture international market. ये सिस्टम में कैसे होता है, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जानबूझ के हमारे करेंसी के वैल्यू को कम नहीं किया जाता है. समटाइम्स हमारे करेंसी के वैल्यू को कम करके इंटरनेशनल ट्रेड को कैप्चर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके अपनाती है. बट इन दिस सिस्टम दैट कैन नॉट बी डन बिकॉज द गवर्नमेंट हैज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन दिस system. So what happens is, since the government is controlling the entire exchange rate, there is investments can take place, the prices of the goods can be more predictable. Then यहाँ पे क्या होता है, एक मॉनिटरी डिसिप्लिन इम्पोज होता है.
यहाँ पे फ्रीक्वेंट करेंसी फ्लक्चुएशन यानी सडनली बढ़ेगा, सडनली कम होगा, ये डर नहीं रहता है. दिस क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड इसके वजह से क्या होता है, दिस सिस्टम इज कंपैरेटिवली सिंपल एंड ये आके स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है. एंड इसमें क्या है, मोर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैन टेक प्लेस इन दिस सिस्टम. Of course, there are certain disadvantages to this system also. क्या होता है कि sometimes the macroeconomic conditions यानी कि बाहर का जो conditions होता है वो आके उसका भी इफेक्ट होता है. जैसे कोई दूसरे कंट्री में वॉर चल रहा है और तो वो वॉर का इफेक्ट ट्रेड पे आता ही है, बट ये सिस्टम आके बेसिक काइंड ऑफ जो चेंजेस आते हैं उसको कंसिडर नहीं करता है. एंड मॉनिटरी ये जो इसके वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को ना हमेशा अपने रिजर्व्स में, द गवर्नमेंट हैज टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज रिजर्व्स बिकॉज दे वांट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी प्राइस. एंड इससे क्या होता है, बहुत बार द रिजर्व्स दैट इज देयर दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनीथिंग एल्स. That currency with that reserve has to be maintained specifically for maintaining the currency stability. So this results in what? This can result in accumulation, high accumulation of reserves. And many a times this system is not suitable for promotion of international trade, क्योंकि ऐसा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है कि ये सिस्टम फॉलो करने के वजह से ट्रेड में इंप्रूवमेंट हुआ है. दिस इज जस्ट एन एजम्पशन कि ये सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा करके. सो देयर इज दिस सिस्टम इज नॉट फुल प्रूफ, 100% फुल प्रूफ नहीं है. एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो होती हैं, but always investors want an increase in the value of the returns that they get. तो क्या होता है, with the fluctuating exchange rate, जो भी, say for example I have invested, I am a foreigner and I have invested in India. ओके, अब इंडियन मार्केट अगर कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहेगा, स्टेबिलिटी तो है, बट मेरा जो पैसा मैंने डाला है वो कंटिन्यूस धीरे धीरे ही बढ़ रहा है. सो एज एन इन्वेस्टर आई विल डेफिनेटली नॉट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर क्या सोचता है कि जिस कंट्री में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कंटिन्यूसली ग्रो होना चाहिए, वहां पे मेरा पैसा अप्रिशिएट होना चाहिए कंटिन्यूस. अभी कंट्री का परफॉर्मेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरे को रिटर्न्स, मुझे एज एन इन्वेस्टर रिटर्न्स अच्छे आएंगे. तो ऑलवेज एन इन्वेस्टर थिंक्स अबाउट इंक्रीजिंग हिज प्रॉफिटेबिलिटी. तो ये सिस्टम में वो प्रॉफिटेबिलिटी एज एन इन्वेस्टर नहीं मिलता है. सो दैट्स द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस system. Then the central bank has to regularly intervene. The central bank has to continuously come in between to stabilize the prices of the currency. मतलब domestic currency का price को constant रखने के लिए the central bank will have to step in between continuously. And ये this method will not help in maintaining the equilibrium of the BOP to a great extent. So these are some of the disadvantages of the fixed exchange rate system. Now we will see what is a flexible यानी fluctuating exchange rate system. This is completely opposite of the fixed exchange rate system. Fixed exchange rate में क्या था? The government was continuously intervening. In this system, the government will not intervene. The government हमारे करेंसी का प्राइस को डिटरमाइन नहीं करता है. हमारे करेंसी का वैल्यूएशन जो दूसरे करेंसीज के साथ होता है, इट इज इन टर्म्स ऑफ द मार्केट फोर्सेस. मतलब हमारा इकोनॉमी जितना स्ट्रांग बढ़ते जाएगा, हमारा इकोनॉमी जितना स्ट्रांग ग्रो होगा, हमारा जीडीपी जितना स्ट्रांग बढ़ेगा, उस हिसाब से हमारे करेंसी का वैल्यूएशन इन द वर्ल्ड मार्केट होगा. तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे करेंसी का प्राइस जो होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, बट मार्केट फोर्सेस जो होती है वो डिसाइड करते हैं हमारे करेंसी प्राइसेस को. Flexible exchange rate system या fluctuating exchange rate system is also called as a floating exchange rate system.
तो इसमें क्या है, देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस? सबसे पहली बात तो इसमें मॉनिटरी अथॉरिटी मतलब जो सेंट्रल बैंक है, इट डजंट हैव टू कंटिन्यूअसली मेंटेन अ रिजर्व, एज दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि हमारा करेंसी का जो प्राइस है उसको कांस्टेंट रखने के लिए हमको रिजर्व उसके सामने रखना पड़ेगा. तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है. और इससे क्या होता है, दिस सिस्टम के वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रहता है, जो वेस्ट पड़ा रहता है इन फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, वो इधर एलिमिनेट हो जाता है. एंड ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके बीओपी को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है. और इसमें क्या है, मॉनिटरी अथॉरिटीज को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. दे आर एबल टू यूज द रिजर्व्स व्हाट एवर इज देयर इन सम अदर एरियाज. और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो करेंसी का वैल्यूएशन है वो आके प्योरली मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है. और इससे क्या होता है, देयर इज ऑप्टिमम यूज ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी में ग्रोथ होती है. एंड इसमें एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंट्री क्या है, करेंसी जितना स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा उतना वो कंट्री का परफॉर्मेंस दिखाता है. तो ये आके एक एक्चुअल परफॉर्मेंस देता है. इसके भी जैसे एडवांटेजेस है वैसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. बिकॉज इसमें मार्केट फोर्सेस है तो द प्राइस फ्लक्चुएशंस के चांसेस बहुत ज्यादा होती है. मतलब 83 $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज है, तो ये 83 का 85, 84 ये 84, 85, 86 तक जाने के चांसेस होते हैं, या फिर 1-2 पॉइंट्स कम भी होने के चांसेस होते हैं. सो यहाँ पे जो वोलेटिलिटी रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है. एंड इसके वजह से एक्सचेंज रेट रिस्क भी बढ़ जाता है. एंड मेनी टाइम्स दिस एक्सचेंज रेट रिस्क के वजह से इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के लिए कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. एंड इसमें क्या होता है, कभी कभी ये दिस कैन फोर्स मॉनिटरी डिसऑर्डर विच कैन लीड टू डाउनफॉल इन द इंटरनेशनल ट्रेड. एंड मेनी टाइम्स स्पेक्यूलेशन यानी कि अंदाज से ये करके रफ एस्टिमेशन करके सडन ट्रांजैक्शंस करना, ये सब चांसेस, गैम्बलिंग जैसे चांसेस, स्पेक्यूलेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस सिस्टम में. In the next slide, I have tried to show the difference between fixed exchange rate system and flexible exchange rate system. So, in the fixed exchange rate system, the currency valuation is done by the central government. In flexible, it is done by the market forces. In fixed exchange, the exchange rates are fixed. In flexible, the exchange rates are flexible. In ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, वेन एवर अ चेंज इज डन इन द वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, इट इज कॉल्ड एज डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन. एंड जो भी एक्सचेंज रेट में जो भी चेंजेस होती हैं इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसमें इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. सो इसमें फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में रिस्क इतना ज्यादा नहीं होता है, तो रिस्क मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव्स की जरूरत नहीं होती है. ऑन द अदर हैंड, इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, सिंस द एक्सचेंज रेट रिस्क इज मोर, एक्सचेंज रेट्स वोलेटाइल होती हैं, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती है, तो डेरिवेटिव्स की यहाँ पे जरूरत पड़ती है. Because of the in fixed exchange rate system, there is a stability of rate. So इसमें क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को एक लेवल तक प्रमोशन मिलता है. यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जैसा आपका करेंसी परफॉर्म करेगा, करेंसी परफॉर्मेंस किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री. कंट्री का जीडीपी कैसे है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसके ऊपर होता है. तो उस हिसाब से बाहर के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे. जैसे अभी इंडिया का करंट पोजीशन में, इंडिया इज ग्रोइंग एट इंडिया इज वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. So lot of foreign investors are coming and doing investment in the country. So this is one advantage. Then in fixed exchange rate system, the stability of the exchange rate is ensured क्योंकि वहाँ पे government intervention है. Whereas in flexible exchange system, there is no such concept of government intervention.
ये जो सिस्टम है फिक्स एक्सचेंज सिस्टम है, इसमें आके the central bank is actively participating, whereas in flexible exchange rate system the monetary authorities or the central bank does not have to actively participate. देन यहाँ पे जो रहता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गोल्ड को एक बेस करके लिया जाता है और ये गोल्ड के बेसिस पे वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज डन, whereas in the flexible exchange rate system गोल्ड के साथ साथ फॉरेक्स को भी लिया जाता है. देयर इज अ बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज, ऑन द बेसिस ऑफ दैट गवर्नमेंट क्या करती है, अपना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी टेक्स प्लेस. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे गोल्ड भी होगा, गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास जो भी फॉरेन करेंसी होता है, देन गवर्नमेंट के पास एसडीआर होता है. नाउ व्हाट इज एसडीआर? एसडीआर इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स which is issued by the IMF. अब IMF क्या है, what is in detail SDR क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में भी I'll let you know in my next lecture. Till then, all of you all stay connected, and I hope this lecture was pretty informative for you and it will help you in clarification of a number of doubts. Thank you so much. Bye bye.